Scoring 9 band in IELTS speaking is definitely a challenging task, but you can definitely score 9 bands in your IELTS speaking applying these tips, techniques and strategies. Welcome to my channel IELTS with Aman. I have compiled a set of 9 best strategical approaches that will help you to enhance your speaking scores and definitely help you to get desired a perfect 9 band in your IELTS speaking. So let's get started. First of all, there are 3 parts in IELTS speaking. In part 1, there are questions about general introduction and about you. In part 2, there's a long talk on a cue card. And in part 3, there are different questions based on the cue card topic. So discussing and focusing on IELTS speaking part 1 first of all, which is the most important part 1. As this is the part 1 of speaking, here you can impress the examiner in the starting, as it is said, a good start is half done. अगर आपने अच्छी शुरुआत कर ली, देन आपने आधा रास्ता ऑब्वियसली आपने क्लियर कर लिया है. तो पार्ट 1 में ही आपने कोशिश करनी है कि आप एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सको. एंड आप एग्जामिनर को इम्प्रेस कैसे कर सकते हो? आई हैव कंपाइल्ड 3 टिप्स फॉर ईच पार्ट. So starting with part 1, IELTS speaking part 1, prepare for the most common topics, which include your work, study, where do you live, your hometown, your house and your apartment. तो इन टॉपिक्स पर एग्जामिनर डेफिनेटली 100% क्वेश्चंस पूछेंगे ही पूछेंगे एंड इन क्वेश्चंस को आपने पहले ही अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे वेयर डू यू लिव, आई लिव इन द नॉर्दर्न पार्ट. Northern part means here you have to use co-locations. Try to use co-locations where you feel is necessary. Co-locations help you to make more impressive answers and you can score 7 and above in your IELTS speaking. So tip number 2 is prepare for the common and most important question types. Take a look for this topic for example. Here there are all the most and common types of questions and these include do, did, often, would and opinion type. So these are the 5 most common and important types of questions which are in each and every introduction topic in the PDF of Makkas in Makkas PDF. आप कोई भी क्वेश्चन कोई भी टॉपिक उठा के देख लो, हर एक क्वेश्चन में हर एक टॉपिक में आपको ये 5 तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जहाँ पर डू होता है, डिड होता है, वुड होता है, हाउ ऑफन एंड योर ओपिनियन टाइप. सो तो आपने हर एक टाइप के क्वेश्चन का आंसर परफेक्टली प्लान आउट करना है. इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी ग्रामेटिकल रेंज को शोकेस करने में एंड टू शो योर ग्रामेटिकल टेंसेस एक्यूरेटली. यहाँ पर आप यू कैन यूज वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स including complex sentences, including conditional sentences, even the range of sentences with obviously with some examples. तो ट्राई करो कि पार्ट 1 के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से पहले से ही प्रिपेयर करके रखो. अगर आप चाहते हो कि मैं पार्ट 1 पे डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में पार्ट 1 लिख देना. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन पार्ट 1 टिप्स. Then number 3 for IELTS speaking part 1. The most important tip include don't give memorized and crammed phrases and answers. तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, इवन मेरे पास अब रिसेंटली एक ऑनलाइन स्टूडेंट है जिन्होंने मेरे से स्पीकिंग की क्लासेस लेनी स्टार्ट करी हैं. तो जब मैंने उनसे पहली बार क्वेश्चंस पूछे पार्ट 1 के तो हर एक क्वेश्चन में दैट स्टूडेंट वाज यूजिंग क्रैम्ड फ्रेजेस. तो एज एन टीचर आई ऑब्वियसली केम टू नो दैट इन्होंने फ्रेजेस को क्रैम करा हुआ है. तो अगर आप क्रैम्ड फ्रेजेस को यूज़ करोगे तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आपने फ्रेजेस को क्रैम किया हुआ है. तो इससे आपके बैंड्स को कम भी हो सकते हैं. डेफिनेटली आप फ्रेजेस यूज़ कर सकते हो लेकिन यूज़ वहाँ पर करो जहाँ पर जेन्युइनली यूज़ हो सकते हैं. एंड सेकेंडली यूज़ दीज फ्रेजेस नेचुरली. Lastly but not the least, don't give too long answers, don't give too short answers. Be natural. Just give your natural answers and take ideas from your daily life. So these are 3 tips जो आप part 1 में यूज़ करके अपने स्कोर्स को इम्प्रूव कर सकते हो. And time for a big announcement here. अब मैंने रिसेंटली कल की वीडियो में मैंने अनाउंस किया था कि मैंने एक कोर्स ऑनलाइन स्पीकिंग का लॉन्च किया है. एंड हेयर अगेन आई एम मेकिंग अनाउंसमेंट ऑफ दैट ऑनलाइन स्पीकिंग कोर्स. अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाके ज़रूर देखना. तो इसमें क्या है, इस कोर्स में आई एम प्रोवाइडिंग यू ऑनलाइन क्लासेस
1 week at 199 only, 1 month at 499 only, and I bet, I guarantee, अगर आप एक हफ्ता भी लगा लोगे तो आपको एक हफ्ते में ही अपनी इम्प्रूवमेंट नज़र आनी शुरू हो जाएगी. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, WhatsApp me on the number given on the screen. So moving on to part 2 of IELTS speaking. Part 2, most of students find part 2 the most difficult one. In fact ये सबसे ज़्यादा easy part होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई इंटरप्शंस नहीं होती हैं, आपको टाइम भी मिलता है प्रिपेयर करने के लिए, एंड आपने लगातार 2 मिनट तक के लिए बोलना होता है. मैंने कल की वीडियो में अपलोड किया था कि आपने क्यू कार्ड को फ्रेम कैसे करना है. Here the tip number 1 comes. टिप नंबर 1 इज कि आपने जब भी अपना क्यू कार्ड को फ्रेम करना है, एक लॉजिकल वे से फ्रेम करना है, ताकि आपके क्यू कार्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी रहे, कोहेशन एंड कोहेरेंस बनी रहे, आप भी मैसअप ना करो क्यू कार्ड को, एंड आप फ्लुएंटली 2 मिनट्स तक इफेक्टिवली बोल सको. तो आपको जो क्यू पॉइंट्स होते हैं इसीलिए गिवन होते हैं ताकि आप इफेक्टिवली लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में विदाउट मेसिंग अप योर आइडियाज आप कंप्लीटली बोल सको. तो आपने उन क्यू कार्ड्स का आइडिया उठाना है, क्यू कार्ड्स को आपने, क्यू पॉइंट्स को आपने यूज़ करके अपना क्यू कार्ड को फ्रेम करना है. और कल वाली वीडियो में मैंने बताया था एक परफेक्ट ईजी स्ट्रेटजी, अ स्ट्रक्चर दैट यू कैन यूज़ इन योर ईच एंड एवरी क्यू कार्ड. तो उस मेथड को, उस वीडियो को ज़रूर देखना, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी क्यू कार्ड कैसे फ्रेम करना है. उसमें उस मेथड से ट्राई करना 5 to 7 क्यू कार्ड्स प्रिपेयर करने के लिए. उसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद फ्लुएंट बन जाओगे क्यू कार्ड फ्रेम करने में. तो उसके बाद आ जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट टिप फॉर पार्ट 2 इज़ स्मार्ट वर्क इंस्टेड ऑफ डूइंग हार्ड वर्क. अब स्मार्ट वर्क क्या होता है? स्मार्ट वर्क मीन्स आपने एक आइडिया लिया, एक क्यू कार्ड प्रिपेयर कर दिया. अब आपने ये देखना है आपका वही वाला आइडिया और कौन से क्यू कार्ड्स में फिट हो सकता है, एंड और कितने क्यू कार्ड्स में फिट हो सकता है. जैसे मैंने कल वाली वीडियो में एक क्यू कार्ड का सैम्पल आंसर की हेल्प से मैंने आपको समझाया था, और वही वाला आइडिया उसके बाद फर्दर ये वाले 10 क्यू कार्ड्स में भी बहुत ही ईजिली फिट होता है. तो एक सैम्पल आंसर को मैंने 11 क्यू कार्ड्स में फिट कर दिया. अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देखना, उसके साथ आपके ये 11 क्यू कार्ड्स प्रिपेयर हो जाएंगे एक सैम्पल आंसर के साथ. एंड विद दिस सिमिलर मेथड मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अपलोड किया था, विच इज़ इन दी स्पीकिंग प्लेलिस्ट. चाहे आप जनरल हो चाहे आप एकेडमिक हो, ये दोनों आप देख सकते हो, बहुत ही इजीली आप यूज़ कर सकते हो. तो मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अपलोड किया था, जहाँ पर मैंने दोनों वीडियोस में 16 क्यू कार्ड्स प्रिपेयर किए थे विद यूजिंग ओनली 1 or 2 सैम्पल आंसर्स. तो बेसिकली मैंने सिर्फ 5 सैम्पल आंसर्स प्रिपेयर किए, एंड 5 सैम्पल आंसर्स के साथ मैंने 45 क्यू कार्ड्स प्रिपेयर कर दिए, एंड काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को भी मिला मुझे. एंड मेरा टारगेट है कि आने वाली वीडियोस में मैं नेक्स्ट 45 क्यू कार्ड्स भी प्रिपेयर कर दूं विद ओनली 5 सैम्पल आंसर्स. और अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वाले 45 क्यू कार्ड्स भी इसी मेथड के साथ, स्मार्ट वे के साथ आपके साथ शेयर करूं, तो कमेंट में येस मैम शेयर ज़रूर कमेंट करना. तो मैं नेक्स्ट 5 सैम्पल आंसर्स में, नेक्स्ट अपकमिंग 5 पार्ट्स में लास्ट बचे 45 वाले क्यू कार्ड्स भी आपको प्रिपेयर करके बना के दे दूँगी. राइट. सो अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और कल वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके ज़रूर चेकआउट करना. इन शॉर्ट आई एम सेइंग कि स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो, अकेला क्यू कार्ड प्रिपेयर मत करो. एक क्यू कार्ड उठाओ और इसको देखो आप उस आइडिया को, और कौन कौन से क्यू कार्ड में और कितने क्यू कार्ड्स में उसको आप फिट कर सकते हो. तो ये थी बात आपके पार्ट 2 की. एंड पार्ट 2 में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इसमें टिप नंबर 3 है, use idiomatic expressions instead of using idioms. Idiom of losing your bands if you will use idioms in your cue card. Instead, try using idiomatic expressions. अब idiomatic expressions क्या होते हैं? Examples आपके सामने हैं. For example, put off, look forward to. So these are carry out. These are some examples of idiomatic expressions जिसको हम phrasal verbs भी बोलते हैं. फ्रेजल वर्ब्स यूज़ करने से आपका जो क्यू कार्ड है और आपकी जो लैंग्वेज है वो और ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाती है, एंड इससे आपका जो स्कोर है वो ज़रूर इंक्लाइन होगा. सो दीज आर द 3 टिप्स टू सम अप. टिप नंबर 1 इज ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, टिप नंबर 2 is smart work, tip number 3 is use of idiomatic expressions. So moving on to part 3 of IELTS speaking.
पार्ट 3 में सबसे इंपॉर्टेंट टिप है गेट फेमिलियर विद द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चंस. So in part 3 also we have basically 3 important and main common types of questions. सबसे पहला क्वेश्चन टाइप होता है आपका ओपिनियन टाइप क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, शुड पेरेंट्स एनकरेज देयर चिल्ड्रन टू स्पेंड टाइम मोर इंडोर्स और आउटडोर्स. तो यहाँ पर आपने क्या करना है, वेल आई थिंक, आपने आई थिंक अपना ओपिनियन देना है फर्स्ट सेंटेंस में. आपने AEE मेथड यहाँ पे यूज करना है. अब ए का मतलब होता है स्टार्ट फ्रॉम योर आंसर. आपने सिंपल अपने ओपिनियन से स्टार्ट करना है. उसके बाद ई का मतलब है आपने अपने पॉइंट को सपोर्ट करना है. आपने अगर यस बोला तो क्यों बोला, नो बोला तो क्यों बोला. उसके बाद आपने अपने सपोर्ट को एक एग्जांपल, अपने आंसर को एक एग्जांपल के साथ आपने सपोर्ट करना है. उसके बाद आपका आ जाता है सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपका मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है, दैट इज द क्वेश्चन व्हिच इज इन द प्लूरल फॉर्म. व्हाट शुड पेरेंट्स डू टू एनकरेज चिल्ड्रन टू स्पेंड टाइम आउटडोर्स. पेरेंट्स को क्या करना चाहिए. तो यहाँ पर आपके माइंड में आपने क्या करना है, 3P मेथड यूज करना है. 3P क्या होता है आपके माइंड में, यहाँ पर 3 पॉइंट्स होने चाहिए. 3P का मतलब होता है सिर्फ आपने अपने पॉइंट्स को बताना है, आपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं करना है. एंड आप यहाँ पर लिंकिंग वर्ड्स यूज कर सकते हो, एडिशनली यूज कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम दिस यूज करते हो, नॉट ओनली दिस यूज कर सकते हो, सिमिलरली लाइकवाइज यूज कर सकते हो. तो कनेक्टर्स की हेल्प से आप अपने पॉइंट्स को जोड़ के ऑर्गेनाइज कर सकते हो. एंड ऑब्वियसली यू हैव टू गिव एग्जांपल एट द एंड ऑफ ईच and every follow-up question. This is very important tip. So third type of most common and important type of question is the option type question. अब option type question का मतलब क्या हो गया, आपको 2 options given होती हैं. What do you think? Online studies are better और ऑफलाइन स्टडीज आर बेटर. यहाँ पर आपने दोनों में कंपैरिजन करके बताना है. आपने यहाँ पर किसी एक साइड नहीं जाना, आपने दोनों साइड जाना है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. नाउ टाइम फॉर द बोनस टिप्स. सो बोनस टिप नंबर 1 इज कि आपने आंसर्स पार्ट 1 के भी ना ज़्यादा छोटे बोलने हैं, ना ही ज़्यादा लॉन्ग बोलने हैं. जस्ट बी नेचुरल. Tip number 2, this is your English language speaking test, so try to be fluent only. अगर आप फ्लुएंसी को मेंटेन कर सकते हो तो this will help you to get 7 and even higher in your IELTS speaking. Fluency is the main thing in your IELTS speaking. So आपने फ्लुएंसी का मेन ध्यान रखना है. एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, अगर आपके आंसर्स रेलेवेंट होंगे एंड एग्जामिनर को आपके आंसर्स में कोई मिस्टेक नहीं मिलेगी, तो अगर आप चाहते हो कि मैं पार्ट 1 पर डिटेल वीडियो बनाऊं या पार्ट 2 पर बनाऊं या पार्ट 3 पर डिटेल वीडियो बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 ज़रूर कमेंट करना, जिस पर भी आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हो. जिस पर भी ज़्यादा वोट्स होंगी उस पर हम नेक्स्ट वीडियो पर हम वर्क करेंगे. एंड डोंट फॉरगेट कि मैंने कल वाली वीडियो में लॉन्च जो कोर्स किया था फॉर 1 वीक 199 एंड फॉर 1 मंथ इज 499 ओनली. अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना. And do subscribe my channel for more daily informative videos on IELTS. Until then, stay happy, stay healthy, and all the very best for your IELTS preparation.